Okay, so we have said good morning to all and welcome to the session. In last session, we have just used the initialization of an array, declaration of an array, and we have also discussed advantages and disadvantages of an array. And if you know, this is the figure where we have discussed about how array elements are stored in a memory. Okay, these A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, these all are the index value of an array of size 5. This blue rectangle R shows the actual value storage of an array element, and these are the memory address of element of an array. Okay, and we have just list out different types of an array. Okay, so let's move on. Today we are going to see that different types of arrays are available in a C programming language. Okay, but we will see how we can declare a two-dimensional and three-dimensional array or multi-dimensional array using C programming syntax. Okay, so we will see and we will also discuss that how can we use the array. Okay. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So moving on. Now today we are just going to start uh, the types or different types of an array that we have list out earlier. Okay. So we have just seen the different types of array, that is one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional array. Okay. So we are just going to see that how we can use two-dimensional array, because one-dimensional array that we have already seen in our earlier session, that how we can declare one-dimensional array. These are the representation of values stored in an array, and this is the basic example program of one-dimensional array. Okay. So these all are about one-dimensional array, and now we are moving on to two-dimensional array. Okay, so we are just uh, making a heading that two-dimensional array. Okay, so what is the difference between single-dimensional and two-dimensional array? So as we have discussed in one-dimensional array, that we can just declare uh, the one-dimensional array like this: int a of 5. Okay, int a of 5. So this is the single dimensional array. Okay, this is the single dimensional array or one dimensional array. One dimensional array. So we are now going to see two dimensional array. The slight difference between one dimensional and two dimensional array is, say for example, if I want to apply, first of all, just imagine that where we can use two dimensional array. Okay. Say for example, in a table format, say for example, if I am using uh, this kind of table. Okay. So this is the table where the number of row is 4 and the number of column is 5. Okay, just we are just
deleting the column, or we are just having 4 rows and 4 columns. Okay, so in this method number if you count the total element, okay, in this table there are 16 cells. Okay, टेबल में 16 सेल्स है, तो हम कितनी वैल्यू, अगर वन डायमेंशनल का हम देखें, वन डायमेंशनल एरे में अगर हम देखें तो उसमें हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so 4 by 4 that is 16 value. We can say for example we can store 16 different values in a single dimensional array. So for 16 value we have to declare here 16 size of an array is 16. Okay, but when we are just considering that we are using a tabular format for storing the data. Okay, टेबल के फॉर्मेट में अगर हमें किसी डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो टेबल के अंदर अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो टेबल में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगी, ठीक है। तो उस टू डायमेंशनल एरे में जो हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल इंट डेटा टाइप, ठीक है, तो अगर एरे का नाम हम रखते हैं ए, तो यहाँ पे आ जाएगा रो साइज एंड दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉलम साइज, ठीक है। सो द फर्स्ट ब्रैकेट shows the number of rows and the second bracket shows the number of columns. Okay, so in our example we have 4 rows and 4 columns. Okay, so we can say that this table can be represent using a two-dimensional array like this: int a 4 4. This is the example of two-dimensional array. Okay, this is the example of two-dimensional array. Okay, so this is the way in which we can declare a two-dimensional array. And remember one thing, जब भी हमें कोई भी डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी हम टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। टू डायमेंशनल मतलब टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल डायमेंशनल भी यूज होगा, बट सिंगल डायमेंशनल में साइज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यही 16 वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज करूं तो मुझे एरे की साइज लेनी पड़ेगी 16, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो उसकी जगह पे अगर मैं टू डायमेंशनल एरे को लेता हूं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में अगर मैं डेटा को रिप्रेजेंट करता हूं तो वो मुझे इजी रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें पोजीशन दिखानी है, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे कि भाई ए ऑफ रो 0 एंड कॉलम 0, ठीक है। कॉलम भी कौन सी आएगी? 0। कॉलम भी कहां से स्टार्ट होगी? 0 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए ऑफ रो 0 कॉलम 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो 0 कॉलम 2। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो 0 कॉलम 3, ठीक है। तो ये उनकी पोजीशन हो गई, एरे एलिमेंट जो भी हम लेंगे ये उनकी पोजीशन हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब नंबर ऑफ रो चेंज होगा, 0 से क्या होगा? 1। कॉलम क्या होगी? 0। फिर यहाँ पे रो होगी फर्स्ट, कॉलम होगी फर्स्ट। वैसे ही यहाँ पे रो होगी फर्स्ट और कॉलम होगा सेकंड, ठीक है। वैसे यहाँ पे रो होगी फर्स्ट और कॉलम होगी थर्ड। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो सेकंड, रो थर्ड, ठीक है।
तो रो सेकंड आ जाएगा, रो सेकंड आ जाएगा और रो सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे रो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हो गई एरे जो हम ले रहे हैं, उस एरे की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने दे दी। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा एरे की पोजीशन। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे जब भी हम लेते हैं तो टू डायमेंशनल एरे को हम ऐसे स्टोर करवा सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया टू डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। एक कैसे टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसकी सिंटेक्स यहाँ पे मैंने लिख दी है। सिंटेक्स में अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, फिर यहाँ एरे नेम, फिर यहाँ रो साइज और कॉलम साइज। तो ये हो गई है हमारी सिंटेक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, सो डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज, ये हो गई हमारी सिंटेक्स। ठीक है, और नीचे हमने एक एग्जांपल दिया और टेबुलर फॉर्मेट में हम कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो भी हमने दे दिया। ठीक है, ओके, तो अभी कुछ पॉइंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल डिक्लेयर एन एरे टू स्टोर। हमने जो टेबुलर फॉर्मेट लिया है वो कौन सा है, 4x4। ठीक है, 4x4। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं मैट्रिक्स और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो उससे हमने डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इस डेटा को हम ऊपर ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, तो हमने जो डिक्लेयर करना था वो हमने ले लिया। अभी देखिए, टू डायमेंशनल एरे में अगर हमें देखना हो कि कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो टोटल एलिमेंट्स इन एन एरे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अगर टू डायमेंशनल एरे हमने लिया है, ठीक है, और अगर टू डायमेंशनल एरे में आपको वैल्यूज एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन आपको वैल्यूज डिफाइन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे। से फॉर एग्जांपल हमने जो एरे लिया है वही मैं लिखता हूं, इंटीजर ए 4x4 से फॉर एग्जांपल। ओके, और हम छोटा कर देते हैं 2x2। ओके, तो इंटीजर ए 2x2 हमने ले लिया, तो हमें टोटल वैल्यूज कितने हम स्टोर कर सकेंगे, 2x2 दैट इज 2/2, दैट इज 2 into 2 4। ठीक है, तो टेबल हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 का। ठीक है, तो अगर ये है, तो अगर मुझे वैल्यूज डायरेक्टली मुझे लिखनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ए, say for example first row first column is equal to 10। ठीक है, then int, or directly we can write like this, a of 0 0, then a of 0 1 is equal to 20, then a of first row आएगी अब, और first column that is 0, तो वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 30। देन हम लिख सकते हैं a of
second row and second column 1, 1 is equal to 4. तो अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू देनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट को आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, इनिशियलाइज करवानी है, तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा से फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने लिया था से फॉर एग्जांपल ड्रॉ अगर करना है हमें तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया था वही हम ले रहे हैं। टोटल 2x2 मतलब 4 वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 0,0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 0,0, ठीक है। अभी दूसरा क्या आ जाएगा, 0,1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 0,1, ठीक है। अभी 1,0 और लास्ट में क्या आएगी 1,1, ठीक है। 1,1, ठीक है। तो ये आ गई एरे की जो रिप्रेजेंटेशन है वो, और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है वो सब क्या है, एरे इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पे है वो क्या है, वैल्यूज ऑफ एन एरे, वैल्यूज ऑफ एरे। वैल्यूज ऑफ एरे, और यहाँ पे क्या आएगा जो हमें लिखना है वो, से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 3000, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 3002, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 3003, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 3004, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये सब क्या है हमारा मेमोरी एड्रेस, जहां पे ये सारी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेमोरी एड्रेस, उसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम जाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की ओर, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है।
चलिए मल्टी डायमेंशनल में जाते हैं, ठीक है। सो अगर उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है तो हम लिख सकते हैं एन एरे विथ मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट, 2 subscripts is called multi डायमेंशनल एरे। देखिए हमने फर्स्ट डायमेंशनल एरे जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो सबस्क्रिप्ट कितनी है, एक ही है सिंगल डायमेंशनल में, एक जो साइज हम डिक्लेयर करते हैं वो। 2 डायमेंशनल एरे जब हमने देखा तो सबस्क्रिप्ट कितनी है, 2 है। 2 डायमेंशनल एरे में 2 सबस्क्रिप्ट। अभी तो मल्टी डायमेंशनल में हमने क्या लिखा है, मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट, मतलब 3 4 जो भी लिखना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल एरे हमने लिया था, 2 डायमेंशनल एरे में हमने क्या कहा था कि 2 डायमेंशनल एरे है वो है मैट्रिक्स फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में जो भी डेटा को हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे को अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मल्टी डायमेंशनल के बारे में हम बोल सकते हैं कि भाई मल्टी डायमेंशनल array is a collection of tabular data, collection of multiple tabular data, or we can say that multiple table data। इसे आप ऐसे समझिए, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक। से फॉर एग्जांपल मैंने मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट डिक्लेयर किया, से फॉर एग्जांपल ए, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया 2, फिर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूं 2, और फिर यहाँ मैं डिक्लेयर करता हूं 2। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया 2 जो साइज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है 2 2 2, तो ये देखिए ये जो लास्ट के जो 2 है वो हमारे 2 डायमेंशनल एरे के जैसे ही है। टेबुलर फॉर्म में क्या दिखाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 लिखा है, दैट मीन्स कि हमें 2x2 का एक टेबल लेना है और उसमें हमें दिखाना है, ठीक है। तो अभी इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक दिस, ए 0 0 और 0, फॉर एग्जांपल में मैं स्टोर करता हूं 10, तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट 0 हमने लिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, 10। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि भाई A1 और 1 सॉरी 0 और 1 लिखूं, सॉरी पहले 0 ही लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूं 20, तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल था यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा, दूसरा टेबल। मतलब सेकंड टेबल में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 20। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल के बारे में जब हम लेते हैं, कोई भी वैल्यूज हम लेते, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट द नंबर ऑफ सेट ऑफ टेबल्स। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट की वैल्यू हमने क्या रखी है, 2, तो मतलब हम क्या ले रहे हैं, 2 टेबल ले रहे हैं, 2 टेबल ले रहे हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों टेबल की साइज क्या होगी, 2x2, मतलब एक टेबल में 4 वैल्यू होगी, दूसरे टेबल में भी 4 वैल्यू होगी, तो इसमें टोटल वैल्यू कितनी होगी, 8 वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल 8 वैल्यूज, बराबर, इन एन एरे। सो टोटल 8 वैल्यूज इन एन एरे, ओके। सो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 देन 1 इज इक्वल टू 30।
फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A 1 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 40। फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट टेबल, फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इज इक्वल टू 50। देन हम ले सकते हैं सेकंड टेबल, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसे हम बोलते हैं 60। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट टेबल, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 70 और यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड टेबल, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में आप याद रख सकते हैं कि एन एरे विथ मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट, ये जो है यहाँ पे हमारी सबस्क्रिप्ट कितनी है, 3, तो मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल डेटा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी सिंटेक्स हमें लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंटेक्स देन डेटा टाइप, then array name, then size 1, उसके बाद size 2 और उसके बाद size। ठीक है, ये हमारी सिंटेक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सिंटेक्स। तो ये सिंटेक्स जो है वो किसके लिए है, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, और ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, ये हमारा हो गया एग्जाम। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू हम स्टोर कर सकते। ठीक है, अब एक काम मैं आप पे छोड़ता हूं, जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किया, 2 डायमेंशनल में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किया, अभी आपको इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना है। जस्ट इसको ही एक्सटेंड करना है, 0 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 0 1001 ठीक है, उसके बाद आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 100 101 110 एंड 111। ठीक है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए जैसे हम मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम जितने भी टाइप्स ऑफ एरे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एन एरे, उसमें 3 टाइप है, सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे में हमने आगे भी देखा था कि कैसे हम फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे डेटा टाइप आप डिफाइन करें, एरे का नाम ले और एरे की साइज ले। ठीक है, फिर उसे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमने देखा। देन आता है 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे को कैसे यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो हमने देखा, उसकी सिंटेक्स क्या है, टेबुलर फॉर्म में डेटा 2 डायमेंशनल एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली देनी है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो भी हमने देखा, और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है say for example how we can different kind of operations that can be performed in an array. Okay, so different types of array, what we can say that the operations that we have to perform in an array. Okay,
सो हम हेडिंग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑपरेशंस ऑन एरे, ऑपरेशंस ऑन एरे. So we can write that the following are the operations that can be performed on an array. So हम लिखते जाते हैं. First, inserting an element in an array, that is insertion operation. ठीक है, insertion operation. Then जैसे हमने इंसर्शन किया उसकी तरह क्या होगा, डिलीशन और डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे. ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम हम देंगे डिलीशन ऑपरेशन. ठीक है. देन थर्ड, रीडिंग an element from an array, that is we can say that what we can say that reading operation. Okay. Then fourth, sorting of elements in array. So this operation will be declared as sorting operation. Okay. So this kind of operation, here reading operation और उसका दूसरा नाम है traversal operation. Okay, reading और traversal operation. ठीक है. So ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे operations of an array. इतने सारे ऑपरेशन है जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर हमें एरे में कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो वो क्या हो जाएगा, इंसर्शन ऑपरेशन. एरे में से कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वो हो जाएगा डिलीशन ऑपरेशन. एरे की जितनी भी वैल्यू है उसे रीड करके वन बाय वन हमें प्रिंट करवाना है तो उसको हम बोलेंगे रीडिंग ऑपरेशन और ट्रावर्सल ऑपरेशन. और जितनी भी वैल्यू एरेस के अंदर है उसे हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, इंक्रीमेंट ऑर्डर और डिक्रीमेंट ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग ऑपरेशन. ठीक है. तो हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं. जो हमने लास्ट टाइम देखा था सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. जो ऑपरेशन है वो है मतलब इन द सेंस ऑफ अ प्रोग्राम. ओके. हम फिर से देखने जा रहे हैं कि भाई कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं. ठीक है. अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू सी that how can we write a program for an array to enter the value or to display the value of an array. Okay. So we are just going to see the basic program of an array. Okay. So let's see how we can write an array, or just we are going to start say for example program. हमने पहला जो प्रोग्राम देखा था वो सिंगल डायमेंशनल के लिए देखा था. अब हम देखने जा रहे हैं write a C program to accept values for 2x2 matrix and print them. Okay. जस्ट हमें एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है. 2 डायमेंशनल एरे में हमें यूजर के पास से वैल्यू कलेक्ट करनी है और उसी वैल्यू को हमें प्रिंट करवा के
देना है, ठीक है। तो प्रिंट करना है, सिंपल एक ऑपरेशन है, मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, लास्ट थर्ड ऑपरेशन जो हमने लिस्ट आउट किया है यहाँ पे, ये ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवाने जा रहे हैं, मतलब रीडिंग ऑपरेशन और ट्रावल्सल ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, और व्हाट वी कैन से दैट कि कैसे हमें एरे को प्रोग्राम को लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारी लाइब्रेरी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं हमारी लाइब्रेरी, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे मेन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो एरे, हम जो एरे की वैल्यूज लेने जा रहे हैं वो है 2x2। तो सबसे पहले तो हमें एरे डिक्लेयर करना होगा। तो एरे को डिक्लेयर हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एरे का नाम दे दिया ए, तो 2x2। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम को एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ओके। 2x2 मैट्रिक्स हमें दिया गया है, तो हमें एरे भी कौन सा लेना है, 2x2 के लिए, ठीक है। और दो वेरिएबल हम ले लेते हैं आई और जे, ठीक है। आई और जे हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो लिखते हैं एक फंक्शन, वो हम लिख देते हैं CLR ठीक है, क्लियर स्क्रीन। अब हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। हम एक मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हो गई प्रिंट स्टेटमेंट, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे में हमें, देखिए जब सिंगल डायमेंशनल एरे में फिर से देख लेते हैं वो प्रोग्राम जो हमने लिखा था। सिंगल डायमेंशनल एरे में जब भी आप कोई वैल्यू को एंटर करवाना चाहे, तो उसके अंदर हम एक ही फॉर लूप को यूज करेंगे, ठीक है। ये एक ही फॉर लूप है जिसमें हम एरे के वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर लूप है वो सेम जो हमने एरे की वैल्यू को एंटर करवाया है उसे हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एरे लिया है वो हमारा एरे है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उस प्रोग्राम में हमें क्या दिया गया है, 2x2 मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमने जो एरे, हमें जो एरे की वैल्यू लेनी है वो है 2x2, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे, तो हमें वैल्यूज भी लेने के लिए हमें दो फॉर लूप, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप वैसे हमें यूज करना होगा। तो हम देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर लूप लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूं, 2x2 का हमें टेबल दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, से फॉर एग्जांपल ए ऑफ 0,0, ठीक है। उसके बाद आएगा ए ऑफ 0,1, ठीक है। उसके बाद आएगा ए ऑफ 1,0 और उसके बाद आएगा ए ऑफ 1,1, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हम फॉर लूप जो लिख रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, वो किसके लिए है, नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है।
तो फॉर i इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रो आएगी 0 0, उसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है 2 क्रॉस 2 हमने लिया है, तो अब हम दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, i इज लेस देन 2, ठीक है। तो i को हमें कब तक स्कैन करवाना है, 2 तक, मतलब फर्स्ट और 2, ठीक है। कॉलम कितनी है, 2, तो लेस देन 2, 0 और 1 से वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 0th रो और 1th रो, देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हम जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से है, तो 0 है और 1 है, 2 आएगी तो थर्ड रो आ जाएगा, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है i इज लेस देन 2, और यहां पे हम लिखेंगे i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। ये हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पे कमेंट, दिस इज फॉर नंबर ऑफ रो, बराबर। अब इसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप हम लिखते हैं, फॉर j इज इक्वल टू 0, देन j इज लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप किसके लिए है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है। तो कॉलम की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो कॉलम की वैल्यू 0 है और 1 है, तो कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो वो लेस देन हमने 2 लिखा है, और प्लस प्लस यहां पर भी मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अब हम यहां पे स्कैनएफ लिखवाते हैं, स्कैनएफ, और यहां पे हम लिखवाते हैं कि भाई मैट्रिक्स, और हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखवाते ए ऑफ परसेंटेज डी, और दूसरे में भी परसेंटेज डी इज, ठीक है, ए ऑफ परसेंटेज डी कमा परसेंटेज डी, वैल्यू हमें जो भी डालनी है वो, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रिंट एफ, सिर्फ हम डायरेक्टली प्रिंट एफ ही करवा देते हैं, प्रिंट एफ करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं वैल्यू, और परसेंटेज डी में हम क्या लिखाएंगे, कॉमा आई और कॉमा जे, मतलब जो हमारा वैल्यू है वो कैसे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ, मतलब ए ऑफ 0,0, ए ऑफ 0,1, ए ऑफ 1,0 और ए ऑफ 1,1, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैल्यू, अभी हम यूजर के पास से वैल्यू लेते हैं, स्कैन एफ, देन उसके अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज डी, जो वैल्यू हमें लेनी है वो m% मैट्रिक, सॉरी m% ए ऑफ आई कोमा जे, ठीक है, ए ऑफ आई कोमा जे, ए ऑफ आई कोमा जे, जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो हम वैल्यू यहां से ले रहे हैं, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट हमने फॉर लूप कंप्लीट कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे में यूजर के पास से हमें जो वैल्यू लेनी है वो। अब वैल्यू तो हमने ले ली है, अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो डिस्प्ले भी हम कैसे कराएंगे, यही फॉर लूप को मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहीं पर मैं लिख देता हूं नीचे। तो यहाँ पे चेंजेस कहां कहां पे आएगा वो ही हमें लिखना है, ठीक है। एक यहाँ पे हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखते हैं द मैट्रिक्स वैल्यूज आर, ठीक है, और यहाँ पे हम /n लिखते हैं। तो जो सेम हमने फॉर लूप लिखा था वही फॉर लूप आएगा, बट यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू लेनी नहीं है यूजर के पास से, प्रिंट करवानी, तो स्कैनएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ में हमें क्या लिखना है, परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमें लिखना है सिंपल ए ब्रैकेट आई
n ब्रैकेट j, ठीक है। यहाँ पे i और j हमें सिंपल लिखना है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली बाहर /n लिख सकते हैं, printf, देन हम उसके अंदर /n दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दूसरे अलग अलग लाइन में वैल्यू है वो हमें प्रिंट होके दिखेगी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्ड लिखा जाए तो भी हो सकता है। तो ये एक पूरा प्रोग्राम हमारा हो गया 2 डायमेंशनल एरे के लिए। 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करके उसमें यूजर के पास से हम वैल्यू को कलेक्ट करते हैं और उसी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक प्रोग्राम 2 डायमेंशनल एरे का, ठीक है। इसी फुल लूप को हम आगे ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट ch, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा एक प्रोग्राम जो हमने 2x2 मैट्रिक्स मतलब 2 डायमेंशनल एरे के लिए हमने लिखा है, ठीक है। So this is a 2 dimensional array example. ओके, एग्जाम्पल हमने जो लिखा है वही है, ठीक है। तो सेम आप 3 डायमेंशनल एरे के लिए भी बना सकते हैं, बट 3 डायमेंशनल एरे के लिए एक तीसरा फॉर लूप आ जाएगा। सिंगल डायमेंशनल के लिए एक फॉर लूप होता है, 2 डायमेंशनल के लिए 2 फॉर लूप होते हैं, और 3 डायमेंशनल के लिए आप जाएंगे तो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप और उसके अंदर तीसरा फॉर लूप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप 3 डायमेंशनल एरे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग और डिलीशन, सर्चिंग एक ऑपरेशन हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 4 ऑपरेशन हमने किए, तो एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे, दैट इज सर्चिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो सर्चिंग ऑपरेशन को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ऐसे ही आप 3 डायमेंशनल एरे को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है। मंडे को जब हम मिलेंगे तो मंडे को हम प्रैक्टिकल्स में जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का जो भी हमने ऑपरेशन दिया है, उस ऑपरेशन के सारे एग्जाम्पल को हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं उसे हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आज के सेशन में अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है। किसी को डाउट है? No, sir. Okay. So we are just going to rest our session, and when we will meet next time, then we will see the practical approach of an array, or we will just implement a program for different kind of operations that can be performed on an array. Okay. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for attending the session. Thank you very much. Just stay. I am just downloading the attendance. Okay. Okay. Now all of you can leave the session. Thank you. Thank you very much.